Welcome back, guys. Now we're going to be doing radioactivity. Question 6, paper 25054. Let's start. The isotope of yttrium 90 is radioactive. It is a beta particle emitter. This might be useful in the near future. Emitter that decays to product Q. Product Q is stable. Product Q is stable. That means that the amount of protons is equal to the amount of electrons. मतलब amount of positive is equal to the amount of negative. State one feature that is common to all isotopes of yttrium. It is common to all isotopes. Isotopes क्या होते हैं? They have the same number of protons या atomic number जो होता है they have the same number of that atomic number ये होता है ठीक है ना? And they have different number of neutrons. So that is the differentiating factor. Differentiating factor क्या होगा? That will be the neutrons. Neutrons different while protons slash atomic number same. ठीक है ना? So you just have to write that the atomic number or the protons are the same. Let's check. Number of yeah. Describe how a neutral atom of Q differs from a neutral atom of yttrium-90. So basically what they are saying is that yttrium-90 जो है that will emit a beta particle ठीक है ना तो ये 90 हो गया और ये 36 हो गया अब हम इसको खुद ही कर लेते हैं बल्कि ये कैसे करते हैं आई फॉरगॉट हाँ यहाँ से सर तो ये हो गया और ये आ गया सबस्क्रिप्ट और ये हमारे पास आ जाएगा यूट्रियम और अगर हम इसको कन्वर्ट करें व्हाट विल हैपन इज कि हमारे पास आ जाएगा द प्रोडक्ट क्यू विद अ बीटा पार्टिकल हमारे पास आ गया क्यू which will have the same number of mass number, the same mass number. It will have the same mass number while it will have the different proton number. ठीक है ना सेम मास नंबर डिफरेंट प्रोटॉन नंबर हमारे पास क्या था 36 था तो 36 से 37 हो जाएगा प्रोटॉन नंबर देखिए लिखा हुआ भी है मैंने द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इंक्रीज बाय वन while the mass number is unchanged तो ये हमारे पास 36 से 37 हो जाएगा एंड इसको हम लिख देते हैं तो क्यू हमारे पास आ गया प्रोडक्ट और उसके बाद क्यू के साथ हमारे पास क्या रिलीज होगा बीटा बीटा जिसका क्या होता है इट इज -1 ठीक है ना तो यार अब हमारे पास ये आ गया ये आ गया अब हम इनका निकाल लेते हैं कि कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं तो इसके अंदर 36 प्रोटॉन्स हैं तो यूट्रियम जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करें इसके पास 36 प्रोटॉन्स while जो Q है the product Q will have a proton number of 37 आगे आगे देख लेते हैं अगर हमने न्यूट्रॉन नंबर देखना हो y का तो in order to find the neutron number we'll have to subtract the mass number by the atomic number which will give us the value of sorry the value of 54 Q का निकाल लेते हैं वैसे ही सिमिलरली Q का अगर हमने निकालना हो तो we will have to subtract 90 from 37 which will give us an answer of 53 तो या देख लेते हैं वन मोर प्रोटॉन अगर हमने कंपेयर करना है Q फ्रॉम yttrium so it has one more proton as we can see it has one fewer neutron as we can see and it has the one more electron of course since it is neutron
तो ये हम इसका स्ट्रेट अवे कॉपी कर लेते हैं। सॉरी। तो लेट्स कंटिन्यू। होपफुली यू अंडरस्टूड दैट। आगे चलते हैं। See, a sample of yttrium-90 is placed close to a radiation detector in a laboratory. There are no other radioactive samples in a laboratory. A count rate records the count rate. A count rate records the count rate. तो हमें दिखाया जा रहा है कि ये मेरे ख्याल से 75 से शुरू हुआ, 75 से नीचे गिरता गया. It goes to a constant value and the constant value is the background count rate. Because अगर ये नॉर्मल वो होता, what do you call it, सब्सटेंस होता जिसका नीचे गिरी जा रहा है काउंट रेट, that will not include the background count rate. But when it reaches a constant value, that means it has reached the background count rate because it is no longer decreasing. ठीक है ना? बैकग्राउंड काउंट रेट ऐसा होता है, द काउंट रेट जो रेडिएशन होती है विच इज एमिटेड फ्रॉम द विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट. ठीक है ना? इट इज ऑलरेडी इन द एनवायरमेंट प्रेजेंट. सो या वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. बट मोस्टली जो हमें ग्राफ्स मिलते हैं दैट एक्सक्लूड दिस पार्ट. ठीक है ना? सो मोस्टली हमने ये नहीं देखना. बट व्हेन द ग्राफ गोज कांस्टेंट वी हैव टू पे अटेंशन टू दैट. एंड व्हेन वी like examine a graph we have to keep in mind all the possibilities. और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि नीचे जाता रहे unless it reaches a very low value. तो अभी हमें एक नजर आया है कि it reaches a constant value which is a value of 18 almost. तो the background count rate will be 80. Notice how they are saying average because it is not a non-fluctuating thing. Like it will fluctuate up and down, but the average will be the same. ठीक है ना? अगर हम इनकी ups and downs को मिला लें, the average will be the same. Suggest two different origins for the background count rate. One will be cosmic radiation, जो radiation cause होती है from our sun and वगैरह वगैरह, and the natural sources like uranium हो गया, radon in the air हो गया. So yeah, any two. Okay, nuclear waste. वेपन टेस्टिंग तो या वेपन टेस्टिंग भी हो सकती है बिकॉज दे डिड नॉट आस्क फॉर नेचुरल, दे आस्क फॉर एनी सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड काउंट. ठीक है ना? बैकग्राउंड काउंट फॉर एग्जांपल आप अगर कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पे चले जाओ, दैट विल हैव अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन. यूजिंग फिगर 10.1 डिटरमिन द हाफ लाइफ ऑफ यूट्रियम. शो हाउ द आंसर इज obtained. अच्छा फॉर सो तो बेसिकली वी स्टार्ट फ्रॉम 75. ये देख लेते हैं, गिन लेते हैं. 62 हो गया, 64, 66, 68, 70, 72, फिर ये 74 और ये 75 बिल्कुल बीच में. तो ये 75 है. हमने ये लिख दिया 75. और हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन कितनी है? ये हमारे पास है 18. तो अगर हम 75 माइनस 18 कर दें, विल वी गेट द नंबर ऑफ काउंट, द ओरिजिनल काउंट. विल वी गेट द ओरिजिनल काउंट? Yes, we do. We get the original count which is 57. ठीक है ना? अगर हम 57 को डिवाइड बाय 2 करें, will we get the will we get half of the number of counts, right? Yes, we will. We will get approximately 29 कर लेते हैं इससे. और जब हमारे पास 29 आ जाएगा, we just have to plot the 29 plus the number of average count rate, जो background average count rate है, which is 18. तो 29 plus 18, sorry, अगर हम इसको ये कैलकुलेट कर लें, वी विल गेट 46.5. 46.5 हमारे पास कहाँ आ रहा है? सो दिस इज 40, 44, 42, 44, 46. ये कर लेते हैं. 46 कहाँ आ रहा है? ये हमारे पास आ गया है इधर.
and each of the small box is 10, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 हमारे पास आंसर आ. So let's check. 60 is the answer. तो 65 आ रहा है. अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो 47 कर दें राउंड ऑफ. 47 राउंड ऑफ कर दें और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो या वी विल गेट द सेम आंसर. और इसको थोड़ा सा नीचे ले आए. अगर हम इसको 46 कर लें तो वी विल गेट दिस आंसर. तो ये एवरेज आंसर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर गोना डू. काउंट रेट लिया है. वन काउंट रेट -18, वन काउंट रेट -18 कैलकुलेटेड 6. तो दिस इज 74 -18, तो हमारा 56 आ गया. 56 को डिवाइड करेंगे. 56 को अगर हम डिवाइड करेंगे you will get the half the value of the counts. और अगर हम उसमें ऐड कर देंगे वापस 18 को हम ऐड करेंगे बिकॉज दैट इज द एवरेज बैकग्राउंड रेडिएशन और वो हमें दे देगा एक वैल्यू. और अगर हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ जाते जाएं एंड वी गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम वी विल गेट द द हाफ लाइफ. ठीक है ना. So this is a pretty different question or 4 marks a question. Of course, they're gonna charge 4 marks for it. And hopefully you understood that. Many of the points plotted in figure 10.1 do not lie on the best fit line because they are fluctuating, they are going up and down. It is not very predictable to know when the beta particles are emitted. ठीक है ना. It is not very predictable and this is not very decisive. हम अपनी तरफ से एक बेस्ट फिट लाइन बना तो सकते हैं बट वी कैन नॉट कैलकुलेट द फ्लक्चुएशंस. हम एक एवरेज निकाल सकते हैं. दिस इज द एवरेज बट वी कैन नॉट एक्यूरेटली मेजर द फ्लक्चुएशन. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा ग्राफ बना दें कि ये ऐसा ये ऊपर चला जाए फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे. लेकिन दैट वुड नॉट बी लाइक नॉट बी गुड टू द विजुअल आई. तो हमने ऐसा किया हुआ है कि हमने एक बीच में बेस्ट फिट लाइन बना दी है बिटवीन ऑल द फ्लक्चुएशन हैपनिंग. और जो फ्लक्चुएशन है दैट इज बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द बीटा पार्टिकल्स बीइंग emitted. So as we don't know that when the beta particles are emitted, we draw a best fit line to measure the best of our abilities. अच्छा जी, a beam of beta particles traveling in a vacuum enters the region between two parallel metal plates. One plate is negatively charged and the other one is positively charged. तो पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है. तो हमने इसमें क्या देखा हुआ है बीटा में क्या देखा हुआ है वेयर डज इट गो. वेयर डज इट गो. तो ये आप ऐसे जाएगा. ठीक है ना. आप ऐसे एरो बना दे. या इट विल गो लाइक दिस. सो एज सिंपल एज दैट. ये आपको याद होना चाहिए. इट इज नॉट conceptual or something. Of course, beta का. So that is gonna be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.